السلام علیکم۔ شہر گاؤں گاؤں کے سفر کے ساتھ میں ہوں لقمان علی۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے، آغاز کریں گے۔ کوئٹہ میں رات کے اندھیرے میں غیر معیاری میٹیریل سے روڈ تعمیر کر دی۔ وزیر اعلیٰ جام کمال کے آبائی علاقے ہب میں روڈ کی تعمیر نے پول کھول دیا۔ راتوں رات تعمیر ہونے والا روڈ ٹھوکر مارنے اور پاؤں رگڑنے سے ہی ٹوٹنے لگا ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں عصمت امان سملانی سے۔ عصمت امان مزید بتائے گا۔ جی بالکل، ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ کوئٹہ میں جو ہے رات کے اندھیرے میں روڈ تعمیر کیا جاتا ہے جو غیر معیاری ہوتا ہے، جسے جو ہلکے سی پیر لگنے یا بھاری بھرکم جو گاڑی گزرنے سے یا موٹر سائیکل گزرنے سے بھی وہ روڈ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتی ہے۔ لیکن اب یہ سلسلہ جو ہے وزیر اعلیٰ جام کمال کے علاقے تک بھی جا پہنچا ہے۔ اب میں جو ہے اس کے علاقہ ہے انتخابی حلقہ ہے، وہاں پر بھی جو ہے اسی طرح روڈ رات کے اندھیرے میں تعمیر کیا گیا ہے، جو ہلکی سے پیر لگنے کے بعد جو ہے وہ تمام جو روڈ ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو رہی ہے، اکڑ رہی ہے۔ تو وہاں کے جو علاقہ مکین ہے وہ بھی کافی جو ہے غم غصے میں پائے جاتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ کئی سالوں بعد جو ہے یہاں پر روڈ تعمیر کیا جاتا ہے، تو اس کے بعد یہاں پر غیر معیاری مٹیریل استعمال کرتے ہیں، جس کے بعد یہ جو ہے روڈ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتے ہیں۔ اکثر ہم دیکھتے ہیں کوئٹہ اور بلوچستان میں جون کے مہینے میں سے زیادہ تر جو روڈ ہے ان کو جو ہے تعمیر کیا جاتا ہے۔ جو فنڈز ہے، جو بجٹ ختم ہونے کے دنوں پر ہی جو ہے جلدی رات کے اندھیرے میں لک ڈال کر جو ہے وہ روڈ تعمیر کیا جاتا ہے۔ بہت شکریہ عصمت امان سملانی۔ سیالکوٹ میں ترقیاتی منصوبوں کو ٹیکس پیئرز کے نام سے منسوب کرنے کی منفرد مہم جاری ہے۔ شہر کے وسط میں عصر نو آباد ہونے والے عبدالحکیم لیڈز پارک کا افتتاح معروف خاتون صنعتکار اور ٹیکس پیئر شبنم آصف نے کیا۔ مزید جانتے ہیں عثمان اقبال سے۔ جی عثمان مزید بتائے گا۔ جی بالکل، پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی رہنما اور وزیر اعظم پاکستان کے معاون خصوصی عثمان ڈار کی جانب سے سیالکوٹ میں ایک منفرد مہم کا آغاز کیا گیا ہے۔ سیالکوٹ میں تعمیر و ترقی کے جتنے بھی کام ہو رہے ہیں وہ مقامی صنعتکار اور جو سب سے زیادہ ٹیکس پیئر ہیں ان کے نام سے منسوب کیے جا رہے ہیں۔ سیالکوٹ میں اس وقت کئی منصوبہ جات جو ہیں وہ ٹیکس پیئر کے نام منسوب کیے جا رہے ہیں۔ میرے ساتھ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی رہنما اور معاون خصوصی عثمان ڈار موجود ہیں۔ اسی حوالے سے ان سے بات کرتے ہیں اور مزید جانتے ہیں۔ جیسا کہ آپ نے کہا، سیالکوٹ کلین گرین منصوبہ کے سلسلہ میں جتنے بھی ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس ہیں جس میں پینے کا صاف پانی ہے، سیوریج سسٹم ہے، گرین پارکس ہیں، ان کے اوپر کام کیا جا رہا ہے۔ اور مجھے خوشی ہے کہ یہ عبدالحکیم لیڈیز پارک سیالکوٹ کی ایک بہادر بیٹی اور جو ٹیکس پیئر ہیں شبنم صاحبہ، وہ اس کا آج انوگریشن کر رہی ہیں، افتتاح کر رہی ہیں۔ 1 کروڑ 60 لاکھ کی لاگت سے کیا کہتے ہیں یہ پارک ریڈی کیا گیا ہے۔ عثمان ڈار کا یہی کہنا تھا کہ عبدالحکیم پارک 1 کروڑ 60 لاکھ روپے کی لاگت سے تیار ہوا ہے، جسے صنعتکار شبنم آصف کے نام سے جو ہے وہ منسوب کیا جا رہا ہے اور شہری اس سے مستفید ہوں گے۔ حیدرآباد میں بجلی کی اعلانیہ اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ میں مزید اضافہ ہو گیا۔ 11 سے 12 گھنٹے کے لیے بجلی بند رہنا معمول بن چکا ہے۔ ہیسکو کا عملہ شہریوں کے مسائل حل کرنے کی بجائے ٹال مٹول سے کام لیتا ہے۔ اس حوالے سے دیکھتے ہیں حیدرآباد سے ناصر شیخ کی یہ رپورٹ۔ حیدرآباد میں بجلی کے اعلانیہ اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ میں مزید اضافہ کر دیا گیا ہے، جس کے باعث نہ صرف کاروباری سرگرمیاں متاثر ہو رہی ہیں بلکہ گرمی میں گھروں میں موجود خواتین اور بچوں کو بھی اذیت کا سامنا ہے۔ بھائی لوڈ شیڈنگ کا تو یہ عالم ہے کہ 12 سے 15 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے۔ نہ یہ سمجھیں کہ نہ رات میں سو سکتے ہیں، نہ دن میں بالکل سکون ہے۔ بالکل ایک ذہنی مریض ہو گئے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ حیدرآباد اور گرد و نواح میں 11 سے 12 گھنٹے کے لیے بجلی بند رہنا معمول بن چکا ہے۔ اس کے علاوہ بجلی کے ٹرانسفارمر خراب ہو جانے کی صورت میں کئی روز تک بجلی کی فراہمی نہیں ہوتی، جس پر شہری احتجاج تو کرتے ہیں لیکن کوئی عوامی نمائندہ یا سیاسی و سماجی رہنما ان کی داد رسی کو نہیں پہنچتا۔ ادھر ہیسکو انتظامیہ اور خاص طور پر ہیسکو سب ڈویژن آفس کا عملہ بجلی کے 27 شہریوں کا مسئلہ حل کرنے کے بجائے ٹال مٹول سے کام لیتا ہے۔ کیمرہ مین عادل خان کے ساتھ ناصر شیخ، نیو نیوز، حیدرآباد۔ سکھر میں بجلی کی غیر اعلانی لوڈ شیڈنگ پر شہریوں کا میٹر گھوم گیا۔ پنکھے اور تاریں اٹھا کر سڑکوں پر نکل آئے۔ پنکھوں کا علامتی جنازہ رکھ کر سکوں کے خلاف انوکھا احتجاج کیا۔ مظاہرین نے لوڈ شیڈنگ اور اضافی بلز بھیجنے کا نوٹس لینے کا مطالبہ کیا۔ مظاہرین نے مذمتی پلے کارڈ اور بینرز اور پنکھے اٹھا رکھے تھے۔ شہر کے مختلف علاقوں میں غیر اعلانی لوڈ شیڈنگ کے باعث عوام پریشان ہے۔ مظاہرین نے سیبکو حکام پر شکایات نہ سننے اور مختلف علاقوں میں رشوت لے کر بجلی چوری کروانے کا الزام لگایا۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ بجلی چوری کروا کر اس کا عام صارفین پر بوجھ ڈالا جاتا ہے۔ مظاہرین نے سیبکو چیف سمیت دیگر حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا۔
मुल्क भर में महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ जमात इस्लामी के कारकुनान सड़कों पर आ गए। लिया, सादकाबाद, सक्कर समेत कई दीगर शहरों में एहतजाज और रैलियां निकालकर हुकूमत को खरी खरी सुनाते रहे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की अपील पर महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ मुल्क भर में कहीं रैलियां और कहीं जलसे जुलूसों का इनकाद हुआ। डेरा अल्लाह यार में रैली के शुरका ने हाथों में बैनर्स और प्ले कार्ड उठा रखे थे, जिन पर महंगाई, बेरोजगारी और सूदी निजाम के खिलाफ नारे दर्ज थे। जाफराबाद के अमीर मोहम्मद अमीन बुगटी का कहना था कि इमरान सरकार आवाम को सहूलियात देने में नाकाम हो चुकी है। बहावलपुर में भी महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ रैली निकाली गई। नायब अमीर जमात इस्लामी का कहना था कि आवाम 2 वक्त की रोटी से महरूम हो रहे हैं। नया पाकिस्तान में बेरोजगार है। कर्क, मिरानशाह, सखर में रैली के रहनुमाओं का कहना था कि मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई ने आवाम को खुदकुशी पर मजबूर कर दिया है। बेरोजगारी हद से बढ़ती जा रही है। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन कमीशन ने 25 जुलाई के इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी कर दी। मीरपुर डिवीजन के 13 इंतखाबी हलकों में 104 उम्मीदवारों के दरमियान इंतखाबी दंगल होगा। इलेक्शन कमीशन इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारान के जल्द से जुलूसों में इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जियों का नोटिस लेकर डिप्टी कमिश्नर को कार्रवाई की हिदायत कर दी। आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन 2021 की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। हल्का LA5 बरनाला में पार्टी कारकुन अपनी अपनी पार्टियों को जितवाने के लिए इलेक्शन मुहिम चला रहे हैं। आसिम अजहर वड़ैच से मजीद जानते हैं इस हवाले से। जी बताइएगा, क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, जैसा कि आज़ाद कश्मीर भर में इलेक्शन की आमद है और इसी हवाले से जो है कारकुनों का जो जोश और जज्बा है वो अरूज पर दिखाई दे रहा है। इस वक्त मेरे साथ कुछ पार्टियों के कारकुन भी मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं कि उनका क्या कहना है। कारकुन की हैसियत से बताना चाहता हूँ कि कर्नल वक़ार अहमद नूर साहब ने 5 साल में तमीर व तरक्की के जाल बिछा दिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह कर्नल साहब जो इस वक्त हल्का बरनाला में इलेक्शन जीत रहे हैं। हम चौधरी प्रवेश साहब के साथ हैं। इंशाल्लाह 25 जुलाई को पीपल्स पार्टी को ये सीट क़यादत आला क़यादत को हम जीत कर तोहफे में देंगे और इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी की ये सीट कन्फर्म है। बरनाला से हम जीत चुके हैं। अनवार लाख साहब की हल्का 5 से वो डंके की चोट पर इलेक्शन लड़ रहे हैं और हम इंशाल्लाह पूरी उनको सपोर्ट करेंगे और वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान को इंशाल्लाह हम तोहफे में ये सीट देंगे। जी ये तो थी आवाम की राय। अब ये 25 जुलाई को ही पता चलेगा कि ताज किसके सर पे जाता है। कैमरामैन टीम के साथ आसिम अजहर वड़ैच, न्यूज़ बरनाला, आज़ाद कश्मीर। मुस्लिम लीग ने आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी मुहिम के लिए मरीम नवाज़ के दौरे का नया शेड्यूल जारी कर दिया। अब मरीम नवाज़ के साथ शहबाज शरीफ, शाहिद खाकान अब्बासी, खुरम दस्तगीर और अयाज सादिक भी शामिल होंगे। नए शेड्यूल के मुताबिक मुस्लिम लीग नून की क़यादत 8 जुलाई को मुजफ्फराबाद में जलसा करेंगे। 9 और 10 जुलाई को वादी नीलम के मुख्तलिफ मकामात पर मरीम नवाज़ और शाहिद खाकान अब्बासी जलसों से खिताब करेंगे। 11 और 12 जुलाई को जेहलम वैली, 12 जुलाई को वादी लीपा और 13 जुलाई को कोटली में जलसा आम से कायदीन खिताब करेंगे। 14 जुलाई को हजीरा और रावलाकोट, 15 जुलाई को पलंदरी और बलोच में, 16 जुलाई को भिम्बर, खड़ी शरीफ और मीरपुर में जलसे होंगे। 17 जुलाई को इस्लामगढ़ और डडियाल में, 18 जुलाई को बाग और 19 जुलाई को फॉरवर्ड कोहटा अब्बासपुर में जलसा किया जाएगा। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो के आज़ाद कश्मीर के इंतखाबी मुहिम के शेड्यूल में तब्दीली कर दी गई है। बिलावल भुट्टो का आज पलंदरी में जलसे से खिताब मुलतवी कर दिया गया। कल से दूसरे मरहले का आगाज निक्याल से होगा। बिलावल भुट्टो 7 जुलाई को अब्बासपुर में जलसे से खिताब करेंगे। 8 जुलाई को हवेली, 9 जुलाई को मीरपुर में जलसे से खिताब करेंगे। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में जमात इस्लामी भी भरपूर इंतखाबी मुहिम चला रही है। जमात इस्लामी की रहनुमा सुमैया रहील काजी भी बाग पहुंच गई। LA15 वस्ती बाग में खवातीन वोटर्स से कॉर्नर मीटिंग करेंगी। इस मौका पर सुमैया रहील काजी का कहना था कि वो पाकिस्तान से मोहब्बतों का पैगाम लाई हैं। यहाँ पर कोई भी जीते, कोई भी असम्बली में जाए, कश्मीरी हमारे दिलों में बसते हैं। पाकिस्तान से ये मोहब्बतों का पैगाम वहाँ से भी लेके आई हूँ कि यहाँ पर कोई भी जीते, कोई भी यहाँ पर असेंबली में आए, कश्मीरी सब हमारे दिल में बसते हैं। यहाँ से हम मकबूजा वादी को ये पैगाम देने आए हैं कि यहाँ का जो बेस कैंप है, इंशाअल्लाह हम कश्मीर की आज़ादी तक उस जद्दोजहद को इंशाअल्लाह जारी रखेंगे। आज़ाद कश्मीर के ज़िला कोटली के हल्का LA9 निक्याल से मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने अपने उम्मीदवार का टिकट तब्दील कर दिया। नए उम्मीदवार साबिक वजीर सरदार नईम खान हैं। पहले मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने सरदार खिजर हयात खान को टिकट जारी किया था। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद।
पर मुकम्मल पाबंदी लगाने का मुतालिबा कर दिया है। मजीद बताएंगे मोहम्मद खान काकड़। बहरून ममालिक और सिंध के माई ट्रालरों को जिला ग्वादर के साहिली इलाकों में माही गिरी के खिलाफ जरगे का इनेकाद, सियासी जमातों के नुमाइंदों की शरीकत, बहरनी ट्रालरों के खिलाफ माही गिरों के मुतालबात की हिमायत। जरगा ने मजमूई तौर पर 15 मुतालबात की मंजूरी दी। मुतालबा किया कि फिशिंग ट्रालरों को जिला ग्वादर के साहिली इलाकों में माही गिरी पर पाबंदी आयद की जाए और इनके लाइसेंस मनसूख किए जाए। महकमे के आला अफसरों की आससों की भी छानबीन की जाए। जरगा ने ऐलान किया कि अगर मुतालबात तस्लीम नहीं किए गए तो सख्त एहतजाज किया जाएगा। मोहम्मद खान काकड़, नियो, कोयटा। जहानिया में अंगूर काश्त करने का रुझान बढ़ता जा रहा है। इन दिनों से बागात फल उतारने का काम जारी है। बागबान अंगूरों को मंडियों में मुंतकिल कर रहे हैं। मजीद बताएंगे अब्दुल सलाम नाज। जी बिल्कुल, अंगूर की फसल सर्द इलाकों में काश्त की जाने वाली फसल तस्वर किया जाता है, लेकिन अब ये जहानिया के इलाके में भी काश्त की जाने लगी है। मुल्क भर में 50 से ज़ायद अक़साम जो हैं वो काश्त की गई हैं। मैं इस वक्त जहानिया में एक बाग में मौजूद हूँ। यहाँ पर जो फल उतारा जा रहा है और मंडियों तक मुंतकिल किया जा रहा है, मेरे साथ बागबान मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं वो क्या कहते हैं। हमने 3 किस्म के अक़साम काश्त की हुई, इसमें सुल्तानी, सीएल, लैंडिश और सुंदर खानी है। हमारे वहाँ ये मसला पैदा होता है कि यहाँ छोटी मंडियों में ये बिकता नहीं है, बाहर ले जाना पड़ता है बड़ी मंडी में जहाँ पे मुनासिब कीमत नहीं मिलती। इसलिए हम हुकूमत पाकिस्तान से अपील करते हैं कि इसे एक्सपोर्ट किया जाए। इस तरह आपने बागबान की बात सुनी, उनका यही कहना था कि वो 3 किस्म की अक़साम जो है अंगूर की काश्त कर रहे हैं और ये मुनाफा बख्श फसल है। किसानों को चाहिए कि बागबानी को फ़रोग दें। दूसरा उनका ये मुतालबा है कि अगर हुकूमत इस फल को एक्सपोर्ट करे तो ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हासिल किया जा सकता है। जी। जलालपुर भटिया में धान की काश्त वसी पैमाने पर शुरू हो गई, लेकिन मजदूर ना मिलने से पनीरी की काश्त ताख़ीर का शिकार हो जाती है और पैदावार भी कम होती है। मजीद बताएंगे मोहम्मद जाहिद मुनीर। जलालपुर भटिया में चावल की काश्त का सीजन शुरू हो गया, लेकिन वसी रकबे पर काश्त के लिए जमींदारों को मजदूरों की किल्लत का सामना है, जिससे फसल की तैयारी में ताख़ीर के खदशात बढ़ गए हैं। जमींदारों ने अपनी मदद के तहत काश्त के लिए मशीनरी हासिल कर ली। ये मशीन 400 मजदूरों के बराबर काम करती है। 45 मिनट में 1 एकड़ जमीन धान काश्त करती है। रिवायती तरीका काश्त से एक मजदूर 1 एकड़ जमीन में 45,000 पौधे लगाता था, जबकि मशीन से ये मिकदार 1,40,000 हो जाती है। हमें चाहिए कि हम पुराने और रवायती तरीके छोड़कर जदीद तरीका काश्त को अपनाएं। पाकिस्तान खुशहाल तब होगा जब किसान खुशहाल होगा, किसान खुशहाल पाकिस्तान खुशहाल। हुकूमत पाकिस्तान अगे साडी अपील है कि सानू सबसिडी दित्ती जाए किसानां नू, ताकि असीं वसी रकबे ते बड़ी आसानी नाल ज़्यादा तो ज़्यादा काश्त कर सकते हैं। काश्तकारों ने हुकूमत से दीगर ज़रूरी ज़रूरियात के साथ साथ धान काश्त करने की मशीन दरामद करने का मुतालबा भी किया है, जिससे किसान खुशहाल होगा और मुल्की ज़र मुबादला में इजाफा होगा। कैमरामैन अली रजा के साथ मोहम्मद जाहिद मुनीर, नियो न्यूज़, जलालपुर भटिया। वज़ीर-ए-आला सिंध के सूबाई मुशीर बराए वर्क्स एंड सर्विसेज निसार खोड़ो के अपने मोहल्ला में मौजूद गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल गटर और नालियों के गंदे पानी में डूब गया है। गर्ल्स प्राइमरी स्कूल में 10 रोज़ से नालियों का गंदा पानी जमा है। ताफ़ुन से असातिज़ा और तालिबात को शदीद मुश्किलात का सामना है। असातिज़ा का कहना है कि स्कूल में ज़ेर तालीम 490 तलबा तालिबात में से बेशतर ने गंदे पानी के बायस स्कूल आना छोड़ दिया है। 7 में से 4 क्लासरूम्स में गंदा पानी जमा है। गंदा पानी स्कूल फर्नीचर भी ख़राब कर रहा है। तमाम मुतल्लिका महकमों को शिकायत कर चुके, लेकिन कोई तदारुक नहीं हुआ। गुजर गया है। मैंने एजुकेशन वर्क वालों को और अपने अफसरों को बताया है, पब्लिक हेल्थ वालों को बताया है, कुछ भी उसने नहीं किया अभी तक। बिजली का निज़ाम नहीं है, सोलर सिस्टम नहीं है, वहाँ इस स्कूल में चौकीदार नहीं है। हमारा मुतालबा है स्कूल का जो पानी का मसला है वो भी सीधा करके दे दे, और इसकी बिजली का मसला है या सोलर सिस्टम का मसला है वो भी सीधा करके दे दे। बटरे दवा सब बाहर किताब पैरन में धक्का तो लगे, वरी हर कपड़ा था मटन किताबन सुनता था कि पढ़ो की आने स्कूल में पानी लगो पियो आने किए निकले आने। जलालपुर पीरवाला में मैपको सब डिवीजन के अहलकार आम सार्फिन को प्राइवेट एजेंटों के जरिए मुख्तलिफ बहानों से लूटने लगे। सैकड़ों की तादाद में लोग वापडा मुलाजमिन के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। मजीद जानते हैं मदनी खान से। जी मदनी खान, मजीद बताइएगा। जी बिल्कुल, मैपको सब डिवीज़न जलालपुर पीरवाला के सताए हुए तकरीबन 200 से 300 लोग जो हैं यहाँ
नवाही इलाका शाहपुर लम्हा के अंदर एहतजाज कर रहे हैं। इस वक्त मैं भी उनके साथ यहाँ मौजूद हूँ। उनसे हम बात करेंगे कि वो इतनी तादाद में लोग वापटा के खिलाफ क्यों एहतजाज कर रहे हैं और उनका मुतालबा क्या है। यहाँ के जो भी ड्यूटी लगाते हैं लाइनमैन, ख़ास तौर पर वो जो चेकिंग पे उतरते हैं, उनमें से साबिर ख़ास तौर पर बहुत बड़ा ब्लैक मेलर है। वो धमकियां देना, मीटर उतारना, फेक करना इसका काम है, लिहाजा इससे निजात दिलाई जाए। इन्होंने मुतालबा किया है कि वज़ीर आला पंजाब और इसके अलावा जो आला अफसरान हैं वापटा के, वो नोटिस लें और इनके खिलाफ जो है कार्रवाई करें जो वापटा के एहलकार इनको तंग कर रहे हैं। खबरें और भी होंगी लेकिन इस ब्रेक के बाद।